So let's continue from the partition of Bengal 1905. Last we have seen till this methods of extremist. अब यहाँ से हम लोग बाइकआउट एंड स्वदेशी मूवमेंट देखेंगे 1905 से 1908 तक का. So the partition of Bengal came into effect on this is 16 October 1905 through a royal proclamation reducing the old province of Bengal in size by creating a new province of East Bengal, which later on became the East Pakistan एंड प्रेजेंट डे बांग्लादेश. तो यही आपका कौन है, ये जो आपका जो एरिया है इस ईस्ट पाकिस्तान लेटर बांग्लादेश. तो आगे आते हैं. द गवर्नमेंट एक्सप्लेन दैट इट वाज डन टू स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ अंडरडेवलप्ड ईस्टर्न रीजन ऑफ द बंगाल, बट एक्चुअली द मेन ऑब्जेक्टिव वाज, क्या था मेन ऑब्जेक्टिव? डिवाइड एंड रूल, जो कि स्टार्ट हो गया था आपका 1857 के रिवोल्ट के बाद ही. तो वहां से कनेक्ट कर सकते हैं. The most advanced region of the country at that time. The main reason for partition of Bengal was to destroy the political influence of the educated middle class, among whom the Bengali intelligentsia were the most prominent. तो ये था रियल मेन कॉज. The main reason for partition of Bengal was to destroy the political influence. तो ये जो political influence वहाँ क्रिएट कर रहे थे, जो educated middle class थे, रविन्द्रनाथ टैगोर और आप मान सकते हैं राजा मोहन राय, तो वो जो एक तरह का वहाँ पे बन चुका था Bengali intelligentsia, the most prominent. So it also set up a communal gulf between Hindus and Muslims. The INC unanimously condemned the partition of Bengal. तो सब मिलकर करते हैं कि partition of Bengal is not right. The boycott and Swadeshi movement has its genesis in the anti-participation movement, which was started to oppose the British decision to divide Bengal. So with the start of Swadeshi movement at a turn of the country, the Indian national movement took a major leap forward. Major leap forward. Now, the INC took up the Swadeshi call in Banaras session. 1905, presided over by G.K. Gokhale, and supported the Swadeshi and boycott movement of Bengal. Now, militant nationalism is spearheaded by trio, that is Lal, Bal, and Pal. And Aurobindo Ghosh was, however, in favor of extending the movement to the rest of India and carrying it beyond the program of just Swadeshi and boycott of goods to full-fledged political mass struggle. So on August 7, 1905, resolution to boycott British goods were adopted. और ये आपका PYQ है ऑफ UPSC. तो किस डेट को होता है? 7th of August 1905. 7th of August 1905. कहाँ होता है? कलकत्ता में. It was started to as a purely economic measure for the development of Indian industries. Now, bonfire of foreign goods was launched on large scale in all major cities. Tilak took the movement to different parts of India, especially in Pune and Mumbai. Ajit Singh Lajpat Rai spread the Swadeshi message in the Punjab and the other parts of northern India. Now, Sayyid Haider Raja set up the agenda in Delhi. Rawalpindi, Kangra, Jammu, Multan, and Hardwar witnessed the active public participation in Swadeshi movement. Now, Chidambaram Pillai took the movement to Madras presidency, which was galvanized by Bipin Chandra Pal extensive lecture tool. Now the Muslim League पे आते हैं. 1906 Muslim League फॉर्म होता है. All India Muslim League was set up by the नवाब. कौन है? नवाब सलीमुल्लाह. रिमेंबर द नेम. पता आएगा नहीं कहाँ होता है. ढाका में होता है. ढाका. And the league supported the partition of Bengal, opposed the Swadeshi movement, and demanded special safeguard for its community and separate electorate for Muslims. This led to the communal differences between Hindus and Muslims. Now, कलकत्ता सेशन पे आते हैं. 1906 का जो कलकत्ता सेशन होता है वो होता है आपको बाई दादा भाई नरोजी, एंड INC अंडर लीडरशिप नरोजी एडोप्टेड कौन सा है आपका? स्वराज, जो हमने दादा भाई नरोजी के लेक्चर में भी देखा था. स्वराज was first demanded by Dada Bhai Naroji as the goal of Indian people. Naroji in his presidential address declared that the goal of INC was self-government of Swaraj like that of United Kingdom. The difference between the moderates and the extremists, especially regarding the pace and the movement and the technique of the struggles to be adopted, came to head in 1907 at the Surat session of the Congress, where the party split with the serious
consequences for the Swadeshi movement. Now सूरत स्प्लिट पे आते हैं तो 1907 का आपका है सूरत स्प्लिट, and it's also a turning point or landmark in the modern history. The split into two groups, the extremist and the moderate, at the Surat session in 19 was held banks of the river. कहाँ होता है? तापी। और रवि पे कौन सा होता है आपका? कराची सेशन। कराची और ये आपका लाहौर सेशन जो होता है, रवि सॉरी लाहौर सेशन, इसमें स्वराज का पूर्ण स्वराज का बात करेंगे नेहरू। So that was on Ravi River. So later we will get to know about that. यहाँ the extremists were led by the Tilak Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal, and the moderates were led by Gopal Krishna Gokhale. So at the Surat session, the moderate and extremist delegates of the Congress met uh, in an atmosphere surcharged with excitement and anger. Excitement and anger. So the suddenness of the Surat fiasco मतलब एक तरह का ड्रामा होता है। तो sudden fiasco took the extremist leader by a surprise and they offered their cooperation to the working committee of the Congress by accepting presidency of रास बिहारी घोष। तो किसके लिए होता है प्रेसिडेंट? रास बिहारी घोष। But the moderates would not relent as they found themselves on the firm ground. The government, observing the opportunity, launched a massive attack on the extremists by suppressing the newspaper and arresting their main leader, now Tilak, and sending him to Mandalay jail, Burma, for 6 years. The extremists were not able to organize an effective alternative party or they sustain the movement. Arvindo Ghosh gave up politics and left for Pondicherry. तो यही अरविंदो घोष है, extremist lamps of old Lalten, gave up politics and left for Pondicherry. Bipin Chandra Pal also left politics temporarily. Lajpat Rai left for Britain. So 1900 national movement as a whole declined. अब हम लोग आते हैं मेजर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 पे। इसमें क्या इंट्रोड्यूस 1909 विन लॉर्ड मिंटो, इसीलिए मिंटो रिफॉर्म कहा था। मॉर्ले वाज दी सेक्रेटरी जनरल। So reform envisaged a separate electorate for Muslim beside other constitutional measures. The government thereby sought to create a rift within the Congress by witnessing support of moderates on the ground and favor of Muslim against the Hindus on the other hand. So to achieve later objective, the reform introduced a system of separate electorate under which Muslim could only vote for Muslim candidate. This was done to encourage notion that the political, economic and cultural interest of Hindus and Muslims were separate, not common. तो ये अलग अलग बता रहे हैं दोनों को और सेपरेट वोटिंग का ही बात कर रहे हैं। Now the the Indian political leaders were however dissatisfied with this reform. हम होम रूल पे आएंगे तो होम रूल मूवमेंट जो है आपका वो 1956 और 16 में आता है। सबसे पहले जो होते हैं तिलक जो होते हैं वो आपको स्टार्ट करेंगे महाराष्ट्र और इधर रीजन में, एनी बिसेंट उसके बाद स्टार्ट करती हैं सितंबर में। तो इस चीज़ को समझना है पहले कि पहले तिलक स्टार्ट करेंगे फिर एनी बिसेंट स्टार्ट करेंगी। तो ये डिफरेंस क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। तो तिलक फाउंडेड इंडियन रूल एट पुणे, तो कहाँ करते हैं वो, ये स्टार्टेड एट पुणे, कब है 28 अप्रैल। सी दिस इज स्टार्टेड इन अप्रैल एंड बाय एनी बिसेंट स्टार्टेड इन सितंबर। सो ये हुआ। इंस्पायर्ड बाय इरिस, देखिए ये है इरिस रिबेलियन स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट इन इंडिया इन सितंबर। तो ऐसे स्टार्ट होता है 1916 और ये पुणे और ये आपका स्टार्टेड होम रूल इन इंडिया। The movement spread rapidly and branches of Home Rule League were established all over India. BG Tilak wholeheartedly supported this movement. He joined up forces with Annie Besant and persuaded a Muslim League to support the program. So अब क्या होता है जो 1920 में ये जो आपका जो ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है वो चेंज हो जाएगा नाम, और क्या हो जाएगा उसका नाम बन जाएगा स्वराज्य सभा। ये स्वराज्य सभा, तो किसके यहाँ पे आपको गांधी का एंट्री होगा और स्वराज्य सभा, तो ये आपका यूपीएससी का ही पीवाईक्यू, जैसे पीवाईक्यू ऑफ यूपीएससी। तो होम रूल से भी यूपीएससी पूछ चुका है, तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ ना कुछ ये लोग टॉपिक घुमाते रहेंगे, तो इसे समझना है। यही होम रूल होम ऑल इंडिया होम रूल लीग ही आपको स्वराज्य सभा बनता है। हम लोग लखनऊ पैक्ट पे आते हैं। तो लखनऊ पैक्ट जो आपका होता है वो 1916 में होता है। यहाँ एन्यूलमेंट ऑफ आप बोल सकते हैं जो आपके एक्सट्रीमिस्ट है मॉडर्निस्ट है वो दोनों मतलब साथ में जुड़ जाएंगे। एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड इन अचीविंग हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी और लखनऊ पैक्ट 1916 का। सो एंटी ब्रिटिश फीलिंग वर जनरेटेड अमंग द मुस्लिम
following a war between Britain and Turkey, which opened the way for Congress and Muslim League unity. Both the Congress and the Muslim League held session at Lucknow in 1916, concluded the famous concluded the famous Lucknow Pact. The Congress accepted the separate electorate, and both organizations jointly demanded dominant status for the country. Now, Hindu-Muslim unity alarmed the British and forced the government to announce its future policy. In 1916, the British policy was announced whereby association of Indians was in government increased and there was to be a gradual development of local self-governing institution. now हम लोग आते हैं मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, और इसे दूसरा नाम है अगस्त डिक्लेरेशन. So the control of the Indian government would be transferred gradually to the Indian people. This was the result of Hindu-Muslim unity exhibited in Lucknow Pact. तो एक आपका होता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट. तो ये एक्ट नहीं, एक तरह डिक्लेरेशन है, तो इसे समझिए. इसमें क्या बात हो रहा है कि द इंडियन गवर्नमेंट को वुड बी ट्रांसफर्ड, द कंट्रोल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ट्रांसफर्ड ग्रेजुअली टू इंडियन पीपल. यहीं से स्टार्ट बात होना स्टार्ट हो चुका है. एंड ये था रिजल्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एग्जिबिटेड इन लखनऊ पैक्ट. अब हम लोग यहाँ पे आते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी आई हैव रिटन ऑल्सो. यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है. मैंडेटरी है आपका स्टेट पीसीएस और मोर एवर हायर एग्जाम्स. तो जैसे सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, तो आपको मिलेगा. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यायाम मंडला, पूना में होता है चापिकस ब्रदर के द्वारा. एंड दीज आर द इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर बेस्ड इन इंडिया. और हम लोग पढ़ेंगे आउटसाइड ऑफ इंडिया. यहाँ देखिए मित्र मेला, ये नासिक में स्टार्ट होता है. कौन? सावरकर ब्रदर्स. अनुशीलन समिति है मिदनापुर में बाई परमनाथ मित्रा. अभिनव भारत, ये है विनय दामोदर सावरकर, पूना 1904. स्वदेश बंधव समिति वरिशल अश्वनी कुमार दत्त. अनुशीलन समिति ढाका पुलिन बिहारी दास. भारत माता सोसाइटी पंजाब अजीत सिंह सूफी अंबा प्रसाद. एचआरए कानपुर सचिंद्रनाथ सन्याल. भारत नौजवान सभा है लाहौर में बाई भगत सिंह. HSRA, ये आपका है चंद्रशेखर आजाद. तो इस चीज को समझिए कि जो आपका जो HRA है, जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये कानपुर में स्टैब्लिश होता है. और कौन करते हैं? सचिंद्र नाथ सन्याल. देखिए यहाँ भी आपके इसमें 3 वर्ड है, 1 2 3, और यहाँ भी 1 2 3. लेकिन जो बड़ा है HSRA, तो जो एस यहाँ लग जा रहा है, सोशलिस्ट लग जा रहा है. ये आपको, ये फिरोजा कोटला में ये इसका स्थापना हुआ था. और ये आपको चंद्रशेखर आजाद, देखिए 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी राइम कर लीजिए. यहाँ पे 4 वर्ड है तो 4 है, वहां पे 3 है तो 3 है, ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग कि चंद्रशेखर आजाद इतना बड़ा नाम इसमें नहीं आएगा. ठीक है, एसएनएस वहां पे है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो 2 का स्क्वायर ऐसे कुछ भी आप ये करिए. लेकिन यहाँ पे क्या है, इस चीज को समझना है कि जो HSRA है was formed in 1928 by चंद्रशेखर आजाद. लेकिन जो भारत नौजवान सभा है बाई लाहौर, ये है भगत सिंह के द्वारा. ना इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अब्रॉड देखते हैं, जो जैसे बोला बाहर में जो जो किए हैं. तो सबसे पहले इंडियन होम रूल सोसाइटी है, ये लंदन का है, और यहाँ करते हैं स्वामी कृष्ण वर्मा, और ये 1904 में आपका होता है. अभिनव भारत पे आते हैं, तो ये लंदन में होता है, विनय विक्रम दामोदर सावरकर, और जो वीडी सावरकर बोलिए, तो अभिनव भारत लंदन में भी ये करते हैं. नाउ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और ये कैलिफोर्निया में होता है भाई तारक नाथ दास. तो इसको समझिए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग. तो लेट्स डाइव डीप इनटू इट. सो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो अपना इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है, ये फाउंडेड इन कैलिफोर्निया इन 1907 बाई तारक नाथ दास एंड पांडुरंग खौंजोय टू फाइट इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल. ठीक है, India independence from British rule. The early organization was a precursor of the prominent Gadar Party. तो गदर पार्टी के पहले का ये है. Which was formally established in 1913 in San Francisco. ये गदर पार्टी है सैन फ्रांसिस्को में बनता है.
द लीग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द पब्लिकेशन न्यूज़पेपर फ्री हिंदुस्तान है एम टू मोबिलाइज एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट अमंग द इंडियन इमिग्रेंट्स इन नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ वही चीज़ फिर से लिखा है तारकनाथ। प्राइमरी गोल टू अचीव द इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। गदर पार्टी में 1907 लीग कंसिडर्ड प्रिकर्सर टू एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन। गदर पार्टी फॉर्म एस्टैब्लिश 1913। तो ये आपको 8 साल बाद, ये 5-6 साल बाद फिर से स्टार्ट होता है। और की एक्टिविटी लीग पब्लिश्ड एंटी ब्रिटिश न्यूज़पेपर क्या है, फ्री हिंदुस्तान। ये जो आपका है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन कैलिफोर्निया, दिस लीग पब्लिश्ड दिस फ्री हिंदुस्तान। अब इसका जो प्रिकर्सर जैसे हम लोग यहाँ बात किए, फिर गदर पार्टी इसके बाद बनता है 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। अब यहाँ देखिए एक दो तरह का इंडिपेंडेंस लीग है, एक है आपका जर्मनी में और एक है आपका एक गवर्नमेंट बनाया जाता है काबुल में, ठीक है। और ये बनाते हैं राजा महेंद्र प्रताप। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पहले इसको देखते हैं जो कि जर्मनी में स्टार्ट होता है। दाओ तो हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो जर्मनी में है वो किसका असिस्टेंस लेगा, जर्मन का, और ओटोमन एम्पायर का ले रहा है टू रिवोल्ट, टू इंस्टिगेट रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो ऐसे समझना है। नाउ एस्टैब्लिश 1915, ओरिजिनली कॉल्ड बर्लिन इंडिया कमेटी, ठीक है। तो इसका नाम है बर्लिन इंडिया कमेटी बिफोर बीइंग रीनेम्ड। सो की फाउंडर यहाँ पे आते हैं आपके वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता एंड लाला हरदयाल। तो हरदयाल भी यहाँ पे। गोल क्या है, टू सिक्योर जर्मन एंड ओटोमन असिस्टेंस टू इंस्टिगेट रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। मेथड क्या है, मोबिलाइजिंग इंडियन एक्सपेट्रिएट्स टू प्रोवाइड वॉलंटियर आर्म्स, spreading anti-British propaganda in Middle East and Germany, organizing provincial Indian government in Kabul and अफगानिस्तान। और यही आपको महाराजा प्रताप बनाते हैं वहाँ पे। तो यही हमारे राजा महेंद्र प्रताप है जो इसको यहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे काबुल में 1915 में। सो वी विल कंटिन्यू इन अनदर वीडियो।